Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 32, ladies and gentlemen, the last lecture of this course. We had very good time together, I hope, and we have started MS Project 2007 training. But before we continue and we conclude this session with MS Project 2007, I would like to have the summary of the whole course. There is a revision class in this last lecture, but as we were working with MS Project, and I just want to give you the complete glimpse of this very good tool. The time which is given for MS Project is not the adequate one, like 6 hours is not adequate. Obviously, you need to spend more time on that. The trainings may actually require you to complete like up to 35 or 40 hours hands-on thing by consulting the manuals and doing the actual examples. So this is one thing. Okay, now in this lecture we will like to have a recap, and I will advise you one thing which has been stated in lecture number 1 as well, that lecture number 1 should be the baseline for whole of the course, and should always be considered whenever you are preparing for any exam, because most of the talk on exams we had done over there. We had talked over there about quizzes, assignments, and final and midterm papers. So when you are actually doing that, you must understand that lecture number 1 is kind of starting lecture as well as a revision lecture. So when you complete lecture number 32, this lecture, I will advise to go again back to lecture number 1 to have what we are going to cover by that time and what we have covered. So then that will conclude the whole thing. This is the last seminar on which is on MS Project 2007, but the first seminar we had opened was about program management, and we had talked about different domains of program management. That topic is very kind of demanding, and this is kind of advanced level project management. So program managers, they are senior level. So we had tried to curtail the things. Remember, program management cannot be taught in only 5 hours or 5 sessions. That was just a glimpse or very high level information we have provided, and then we had good number of sessions on business analysis. We do know now that what is business analysis and all the related things we have discussion. So basically this course, as far as examination is concerned, business analysis will be very, very important part. Then we had one seminar on portfolio management. That is equally important for examination point of view, and PMO, that is very important for examination point of view. And techniques, we can have techniques as well of business analysis, and network diagrams are very fine, but earned value management is very important as far as examination is concerned. The sessions on MS Project 2007, they are for training purposes, and they are only for you people to have hands-on training. So there may not be a direct question from these sessions, but the situational based question may be asked. So if you have done MS Project practice at your workplace or your home, then you may be able to answer that. Otherwise you won't be able to answer the question of that. So I advise you to have at least for 2 times revision for MS Project lectures.
most of the things they will be in repetition, so you will be able to understand the very basic concept and very basic flow, but you need to focus on business analysis, portfolio management, PMO, and earned value management. This is the most important, and then program management and network diagrams, they are also important. And then the third stage is MS Project. You need to have hands-on training. Once you are having following all the steps, you will be able to develop a schedule, and hence whole concept will be there. So this is all about this course, and now we will continue with the session we had opened for MS Project 2007 training, session number 6 and lecture number 32, last lecture, and then we will be having concluding remarks at the end again. Other day we were discussing about calendars, कैसे कैलेंडर बनाने हैं, एक कैलेंडर डिज़ाइन खुद से कैसे करना है. उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह हमने नॉन वर्किंग डेज को वर्किंग डेज डिक्लेयर किया था. इसी तरह हम कुछ वर्किंग डेज को नॉन वर्किंग भी कर सकते हैं, नॉन वर्किंग को वर्किंग कर सकते हैं. आवर्स हमने चेंज किए थे फ्राइडे के, अगर आपको याद हो. और फिर हमने वो कैलेंडर जो है वो टास्क को असाइन किया था, फिर हमने टाइम स्केल पे असाइन किया था, फिर हमने रिसोर्सेज को असाइन किया था. तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिफरेंट देखी थी. उसके बाद अगर आप को याद हो तो हमने व्यूज़ के ऊपर बात की थी कि डिफरेंट व्यूज़ हैं हमारे पास. गैंट चार्ट का व्यू है, नेटवर्क डायग्राम का व्यू है, हमारे पास रिसोर्स शीट का व्यू है, रिसोर्स यूजेज का व्यू है, और फिर हमने कम्बिनेशन व्यूज़ के ऊपर भी बात की थी. सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. और फिर हमने टेबल्स देखे थे, एंट्री टेबल कैसा है, कॉस्ट टेबल कैसा है, हमने वेरिएंस टेबल्स देखे थे, शेड्यूल के देखे थे, और ये डिफरेंट जो टेबल्स हैं हम इनके साथ फर्दर इनको एडिट भी कर सकते हैं, और इसके साथ हम फर्दर जो है वो भी कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, नए भी बना सकते हैं. ओवर एलोकेशन का थोड़ा सा हमने जिक्र किया था. ओवर एलोकेशन क्या होती है कि एक रिसोर्स जो है अगर वो 24 घंटे के लिए असाइन कर दिया जाए एक, लेकिन वो रिसोर्स हो टोटल 8 घंटे के लिए, तो फिर वहाँ वो जो रिसोर्स है वो ओवर एलोकेट हो जाता है. सो इन दैट केस फिर अभी हमें देखना है कि कब हमारा रिसोर्स जो है वो ओवर एलोकेशन मोड में चला गया. सो फर्स्ट स्टेप वी विल डू कि हम अपना WBS Pro और MS प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. याद रखिए जब भी हम सेशन क्लोज करते हैं तो आपने उसको सेव करना है. ओके, सो अब हमने इनको ओपन कर लिया और WBS Pro और MS प्रोजेक्ट जो है हमारे ओपन हो गए हैं. अब हम इसके साथ देखते हैं. सो प्रिंटिंग द प्रोजेक्ट, अभी जो हमने अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के प्रोसेसेस याद हों तो सबसे पहले तो है कि आपने प्लान करना है कि आपने शेड्यूल मैनेजमेंट करनी कैसे है. जब शेड्यूल मैनेजमेंट आप कर लेते हैं तो फिर आपका अगला जो आता है वो ये है कि शेड्यूल मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो हो गया. और फिर आप देखेंगे कि आपने डिफाइन एक्टिविटीज़ करना है. डिफाइन एक्टिविटीज़ हो गई, वो हमने कर ली थी, याद है आपको. हमने पहले मेजर टास्क एंटर किए थे, फिर माइनर टास्क एंटर किए थे. उसके बाद जब हमारा ये काम हो गया था तो जो फिर स्टेप आता है वो है सीक्वेंस एक्टिविटीज़ का, डिपेंडेंसीज का, जो रिलेशनशिप्स हैं उनका. तो वो हमने फिर रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ के डिफाइन कर दिए थे. और जब हमने रिलेशनशिप्स डिफाइन कर दिए थे तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिसोर्स एस्टिमेट करने का, एक्टिविटीज़ का. तो हम रिसोर्स शीट बना ली थी और रिसोर्स शीट की हमने यूनिट्स डिफाइन कर दिए थे, उनके रेट्स डिफाइन कर दिए थे. और उसके बाद आता है ड्यूरेशन एस्टिमेट का. जब हम ड्यूरेशन कर देते हैं तो देन सिक्स्थ प्रोसेस इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, डेवलप शेड्यूल. तो अगर हम अपने MS प्रोजेक्ट पे देखें तो ये हमारा शेड्यूल ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये इंटरलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, सब कुछ इसमें. तो ये हमारा फिफ्थ, अगर हम इन सारे स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करें, so we have developed our work schedule, and then the last one is called
कंट्रोल शेड्यूल, तो कंट्रोल शेड्यूल का अब हम प्रोसेस जो है उसके ऊपर हम देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू प्रिंट द प्रोजेक्ट। सो प्रिंटिंग के लिए हम पेज सेटअप में जाते हैं और पेज सेटअप के अंदर जाकर डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं और फिर हम कैलेंडर्स के ऊपर थोड़ा सा और काम करेंगे। सो यहाँ आपके पास एक बटन है MS प्रोजेक्ट के ऊपर हम गए हैं, तो यहाँ एक हमारे पास बटन है प्रिंट प्रीव्यू का। सो प्रीव्यू के अंदर, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर या आप फाइल में जाएं और फाइल के अंदर जा करके आपके यहाँ एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू की जो मिडल में है तकरीबन, और अब हम देखते हैं फाइल एंड प्रिंट प्रीव्यू, या हम डायरेक्टली इस बटन को यूज करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अब ये इस वक्त प्रीव्यू है, अगर आप माउस का बटन यूज करें व्हील तो आपके सामने बेसिकली इस तरह की शेप में ये चीजें आ रही हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा मैं प्रिंटिंग के लिए करूं, तो प्रिंटिंग के लिए मैं उसको किस तरह कर सकता हूं, मैं पेज सेटअप कर सकता हूं और इस वक्त पेज पेपर साइज लेटर है, इसको मैं A3 कर दूंगा, A3, और मार्जिन जो हैं वो डिफाइन करूंगा, हेडर्स में डिफाइन करूंगा, फुटर डिफाइन कर सकता हूं मैं, लेजेंड डिफाइन कर सकता हूं और व्यू डिफाइन कर सकता हूं, और क्या चीज मैंने करनी है, और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगी प्रिंट प्रीव्यू। जब मैं प्रिंट प्रीव्यू करूंगा तो मेरी इस तरह की A3 के ऊपर ये हमारी शेप बन रही है, लेकिन आप देखें कि इसमें सिर्फ ड्यूरेशंस आ रही हैं और WBS में नहीं चाह रहा, इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूंगा। सो WBS को मैं करूंगा, WBS कॉलम को मैं हाइड कॉलम कर दूंगा, और अब मेरे पास कॉस्ट आ गया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेता हूं, कॉस्ट को मैं नहीं देखना चाह रहा, और अब मैं दूसरी जो चीज है वो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो ये शेड्यूल है ये ज्यादा प्रॉपर जगह पे आए और ज्यादा बड़ा करके नजर आए, तो इसको थोड़ा सा मैंने व्हील माउस के साथ या हम इसको अब ये एक शेप है जो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, व्यू करूंगा और देखें अब मेरी ड्यूरेशन भी नहीं आ रही और मेरा पूरा का पूरा प्लान जो है वो मैं एक पे भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं पेज सेटअप में जाके पेज एंड एडजस्ट फिट टू 1 पेज बाय 1 पे, और इस तरह आप देखें मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो एक जगह पे आ गया है, और इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो टास्क नेम आ रहा है सिर्फ, और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं बाकी इन्फॉर्मेशन भी चाहता हूँ तो मैं क्लोज करके इसको थोड़ा सा इस कॉलम को जो बाउंड्री है वो हाईलाइट करूंगा, और अब मैं जब व्यू में जाके देखूंगा तो मेरी चीज़ जो है जिस तरह मैं चाह रहा था वो आ चुकी है। ये मेरी एक डेडलाइन भी पड़ी हुई है, और इसी तरह मेरे अगर आप देखें तो माइलस्टोन्स भी हैं, डेडलाइंस भी हैं, और इस तरह मेरा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ इसका नीचे लेजेंड है, आप इस लेजेंड को चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह प्रोजेक्ट का नेम है कॉमसेट्स वर्चुअल MS ट्रेनिंग, सो वी कैन हैव दैट and we can have this task. So this blue line is for task, this red is for critical path and progress. Progress अभी तक हमने की नहीं है, लेकिन जब हम करेंगे तो we will see कि ये क्या इसका बनता है। डिफरेंट के एरो का क्या मतलब है, डाउन एरो का क्या मतलब है, और ये सारी चीजें यहाँ देखें आपके पास डिफाइंड हैं। माइलस्टोन जो है वो भी दिया हुआ है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि हम अभी इसको कर सकते हैं, एंड क्लोज एंड सेव। सो इसके ऊपर हमने बात कर ली प्रिंट करने का। उसके बाद हमने जो एक और चीज करनी है वो है पब्लिक हॉलीडे। तो हम MS प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेंगे, और यहाँ से हम जा कर के हम बेसिकली पब्लिक हॉलीडे को सेट भी कर सकते हैं कि किसी एक दिन हम जो है पब्लिक हॉलीडे को सेट करते हैं। तो हम नॉन वर्किंग टाइम, सो टूल्स, जहां हमने चेंज वर्किंग टाइम किया था पहले, टूल्स, चेंज वर्किंग टाइम, चेंज वर्किंग टाइम,
और अब अभी देखिएगा कि आपकी ड्यूरेशन आपके पास होनी चाहिए कि क्या स्टार्ट है क्या फिनिश है। थर्सडे 1 जनवरी को आपका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम 14 अगस्त की जो छुट्टी है वो रखना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, टूल्स, चेंज वर्किंग टाइम, और अब हमें इस टाइम जनवरी में है, हम जाएंगे मार्च, जून, अगस्त 14। सो अगस्त 14 के ऊपर जा करके हम इसकी जो है इसको हम इसको चेंज कर देंगे। दिस इज सेट नाउ, बट व्हाट वी विल डू इज कि हम डिफॉल्ट और हम इसको जो है वो एक्सेप्शन डे जो है वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई हम नाम एंटर करते हैं, लाइक 14 अगस्त and start is 14th अगस्त एंड फिनिश इज 14। तो एक्सेप्शंस के अंदर हमने 14 अगस्त एक एक्सेप्शन डाल दी है, और अब हम इसको डिटेल्स में जा करके देखते हैं कि इसका क्या है। सो अब अगर आप देखें तो इसको हमने नॉन वर्किंग डिक्लेयर किया हुआ है। सो इसको हमने नॉन वर्किंग डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि हमारा एक ईद आएगी, जो कि हम कहते हैं कि लेट्स से कि हमारी 1 अगस्त को लेट्स से ईद आती है, तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं और इसको कहते हैं ईद ईद उल फितर। और इसकी डिटेल्स में जाके इसको भी हम नॉन वर्किंग सेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम करते हैं क्रिसमस, pardon my spellings, so I write simply okay। और जो क्रिसमस है इसकी डेट मैं सिलेक्ट करता हूं जाके दिसंबर की 25, और इसकी अगर मैं डिटेल्स में, और ये खुद ही इसने एडजस्ट कर लिया, डिटेल्स में जाऊंगा और नॉन वर्किंग करके ओके। तो ये कुछ हमने जो हैं छुट्टियां हैं उसको हमने डिफाइन किया, और जब हम ओके करते हैं और हम देखेंगे कि आपका जो ड्यूरेशन सेम रहेगी, लेकिन जो आपका फिनिश है वो आपको फर्दर आगे चला गया। ठीक है, सो स्टार्ट और ये फिनिश जो है आपका उन डेज के अंदर वो आगे चला गया। सो दिस इज हाउ कि किस चीज के ऊपर इफेक्ट आया, वो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो रेड ब्लू हो गई हैं कि ये फर्दर उसमें अफेक्ट होंगी। तो उसमें हमें फर्दर चीजें देखने की जरूरत होती है कि क्या हमारी कोई चीज। सो इस तरह हम जो पब्लिक हॉलीडे जो है वो सेट कर सकते हैं। सो एक्सेप्शन में जाके आपने कोई नाम लिखना है, और नाम लिख के फिर आपने फर्दर जो है वो चीज देख लेनी है। ओके, अब हमने ओवर एलोकेशन की तो बात की थी, अब ओवर एलोकेशन की बात करेंगे, उसको रिजॉल्व करने की बात करेंगे। कुछ को मैनुअली करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम कर देगा, कुछ नहीं कर सकेगा। जो नहीं कर सकेगा उसका फिर हमें रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे। जो कर देगा वो क्या करेगा कि 180 दिन से ऊपर चला जाएगा। तो अब हम इसमें दो तरीके हैं, या तो हम मैनुअल कर रहे हैं और मैनुअल करके फिर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, और ऑटोमेटिक करने से क्या फर्क पड़ता है, और फिर हम बेसलाइन करेंगे और ट्रैक करेंगे। रिसोर्स लेवलिंग है जो रिसोर्स एलोकेशन के लिए काम आती है, कि रिसोर्स लेवलिंग कैन हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिजॉल्व ओवर एलोकेशन बाय डिलेइंग और स्प्लिटिंग अप टास्क्स। इसके लिए आप लेवल रिसोर्स यूज करके, और उसमें आप देख सकते हैं, और लेकिन हम अभी दो तरीके से जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमारे इस टाइम जो रिसोर्स शीट के अंदर कौन से रिसोर्सेज हैं जो ओवर कमिटेड हैं। तो जो रेड वाले हैं वो रिसोर्सेज हमारे ओवर कमिटेड हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर में हम जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का हमने डिफाइन किया हुआ है कि इसको हम कर देते हैं 50%। ओके, और मैक्सिमम यूनिट्स हम कर देते हैं इसके, अगर मैं करता हूँ 100%। सो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है।
और अगर मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर को करता हूँ 200%, जैसे 200% करता हूँ तो ये मेरा ठीक हो जाता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इस तरह 200% करता हूँ तो ये भी मेरे 2 प्रोजेक्ट में करने से। अच्छा, कारपेंटर के इस वक्त 200% है और इसको मैं 300% करता हूँ। जैसे मैंने 300 तीसरा लेके आया, ये भी रिजॉल्व हो गया। और इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि जितने भी हैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो। और नॉट एप्लीकेबल 100%। ओके, अब मैं इसको करता हूँ 200%। लेट्स से एक रिसोर्स हमारा, सो ये अब हमारा 200% पे। ये देखिए सारे, एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि आप रिसोर्स ऐड नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि जी हमारा जो भी आपका है सिस्टम को कहते हैं कि आप खुद से हमें ठीक कर दें जितना भी आपने। अब 180 डेज फिर नहीं रहेगा, फिर हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, 4/1 को खत्म ना हो प्रोजेक्ट, तो अभी हम उसको इस तरह करके भी देख सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, टूल्स के अंदर हम जाएंगे, टूल्स, और टूल्स के अंदर जाकर के हम यहां एक हमारे पास ऑप्शन होगी लेवल रिसोर्सेज की। सो टूल्स में गए और लेवल रिसोर्सेज में हम चले गए हैं और लेवल रिसोर्सेज को जब हम क्लिक करेंगे टूल्स में जाकर के तो ये हमारा एक ऑप्शन आ जाएगी। और इस वक्त हमारी ऑटोमेटिक लेवलिंग है या मैनुअल लेवलिंग है, अब हमने ये इसमें से चॉइस करना है। और ओवर एलोकेशन किस बेस पे हो सकती है, मिनट बाय मिनट की बेस पे, आर बाय आर की बेस पे, डे बाय डे जो है हमारी सिलेक्शन है। एंड क्लीवर लेवलिंग वैल्यूज बिफोर लेवलिंग एंड लेवल एंटायर प्रोजेक्ट, और डेट्स भी दी हुई हैं कि कब से लेके कब तक करना है आपने। लेवलिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड, लेवल ओनली विद इन अवेलेबल स्लैक, लेवलिंग कैन एडजस्ट इंडिविजुअल असाइनमेंट्स ऑन अ टास्क, लेवलिंग कैन क्रिएट स्प्लिट्स इन रिमेनिंग वर्क, लेवल रिसोर्सेज विद द प्रपोज्ड बुकिंग टाइप। एंड अब आपने एक बटन प्रेस करना है दैट इज कॉल्ड लेवल नाउ, और फिर देखते हैं क्या होता है। जब आप लेवल नाउ करते हैं तो उसने कहा जी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ओवर एलोकेटेड है और उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द कंबाइंड असाइनमेंट्स ऑफ समरी टास्क मीटिंग्स एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स ऑन सैटरडे। ट्राई रिमूविंग द असाइनमेंट फ्रॉम ईदर द सब टास्क्स और समरी टास्क्स। सो हम इसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं, स्किप। और बाकी देखते हैं कि उसने क्या किया है कि एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर को तो उसने कह दिया जी मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाकी कुछ उसने किया है क्योंकि ड्यूरेशन आपकी यहाँ देखें चेंज हो गई है। ड्यूरेशन चेंज होने का मतलब है 362 डेज पे चली गई है। तो अब हम व्यू में जाते हैं और देखते हैं रिसोर्स शीट के अंदर, देखिए बाकी उसने सारा कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं किया। तो हम कंट्रोल जी करते हैं और देखते हैं कि कंट्रोल जी करके हम मीटिंग्स को उड़ा ही देते हैं। इसके ऊपर हम फिलहाल कोई काम नहीं कर रहे और इस टास्क को जो है इस टास्क को हमने खत्म ही कर दिया। और अब हम देखते हैं कि हमारे रिसोर्स शीट की क्या सूरत हाल है कि जैसे ही हमने उसको खत्म किया बाकी कोई इशू नहीं है, सिर्फ कारपेंटर का इशू है कि कारपेंटर जो है वो हमारा ओवर एलोकेट है। अब हम जाते हैं गैंट चार्ट में और अब हम लेवल करते हैं, टूल्स, लेवल रिसोर्सेज, लेवल नाउ, और अब हम देखते हैं कि हमारी ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की क्या होगी 194। अब अगर हम व्यू जाएं और रिसोर्स शीट में जाएं और अभी भी यहाँ व्यू रिसोर्स शीट, तो अभी हमें इसका मतलब है कि इस रिसोर्स को अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको 250% और फिर 300% करते हैं। तो 300% के ऊपर ये अब रिजॉल्व होगा, बाकी हमारी सारी शीट जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह यू नीड टू प्ले विद दिस, कैसे ओवर एलोकेशन खत्म करनी है, कैसे आपने इन सारी चीजों को देखना है, कैसे क्रैशिंग करनी है, कैसे आपने स्प्लिटिंग करनी है, फास्ट ट्रैकिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली आपकी लेवलिंग वाले में कवर होती हैं। लेकिन अभी हम लेवलिंग की थ्योरी फर्दर कुछ देखेंगे ताकि हम इसके ऊपर ज्यादा अच्छी एप्रीहेंशन जो है वो हमारी आ सके।
ये हमने स्लाइड्स देख ली थी. लुक फॉर ओवर एलोकेशन ऑन बेसिस, कि किस बेसिस पे आपने करना है. सेट्स द थ्रेशोल्ड फॉर हाउ प्रोजेक्ट लुक्स फॉर ओवर एलोकेशंस. The possible values for this setting are minute by minute, hour by hour, day by day, week by week and month by month. और हमने कौन सा यूज किया था? हमने यूज किया था day by day का. A large percentage of the confusion about project's leveling feature comes from not understanding what this setting does to the leveling process. For example, if you have a resource, Steve, assigned to work on 2 tasks during a day, and the total work for that day between 2 tasks is 7 hours, there might be an over allocation on this day. This will happen if the 2 tasks overlap for even a minute. So assigning Steve more work than what has been designated as his max units value, you may not want project to spend time dealing with every one of these minor over allocations. So perhaps this particular project, as long as Steve isn't assigned to work more than 8 hours in a day, that is okay with you. In that case, you would level on a day-by-day basis, not minute-by-minute basis, telling project to ignore any over-allocation that is at the level of overlapping hours or minutes. However, if Steve were assigned to work 9 hours in a day, then leveling with the day-by-day setting would try to resolve that over-allocation. Doing so would resolve the over allocations that have Steve working more than 8 hours in a day, but could leave some of the smaller minute by minute overlapping assignments alone. Many project managers choose to trust this resource to self-level on these kinds of small over allocations. तो अगर कोई आधे घंटे का फर्क हो या घंटे का फर्क हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर समझते हैं कि वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, और वो होना भी चाहिए है. सो रिसोर्स लेवलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो देखें, एक रिसोर्स है वो कब ओवर कमिटेड होता है कि जब वो एक टास्क पे काम कर रहे हैं और उसी वक्त आप दूसरा टास्क उसको दे देते हैं. अगर तो वो एक ही दिन में आ गया, ये टास्क 3 घंटे का, ये भी 3 घंटे का है, और आपने इसको इस तरह लगा दिया, तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो खुद ही जब ये काम खत्म करे फिर ये काम शुरू करे. इवेंचुअली आप क्या चाहते हैं कि वो टोटल 6 आवर्स उसके पास हैं और वो खुद ही थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेगा, वो जो जैसे ही खत्म करेगा उसके बाद ये शुरू करेगा. लेकिन अगर आप मिनट बाय मिनट करना चाहते हैं तो फिर क्या करेगा, वो पूरा का पूरा शेड्यूल स्ट्रेच कर देगा. दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपने 8 दिन का उसे काम दिया, 8 घंटे का काम दिया एक दिन में, तो 4 घंटे एक असाइनमेंट पे काम करना है, 4 घंटे दूसरे असाइनमेंट पे काम करना है. सो ही विल बी फाइन. सॉफ्टवेयर इसको पढ़ेगा कि 4 घंटे उधर किया, 4 घंटे इधर किया. लेकिन अगर आपने उसको कह दिया कि आपने 12 घंटे काम करना है, अब 12 घंटे का मतलब है कि आपने बेसिकली उसको ओवर एलोकेट कर दिया 4 आवर्स, तो वो फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि उसके काम को वो स्प्रेड कर देगा, वो 1 घंटा उसको एक्सटेंड कर देगा. सो ये चीज जो है बेसिकली आपको एप्रीहेंड करने की जरूरत है. सो लेवलिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड और या प्रायोरिटी स्टैंडर्ड, इसके ऊपर आप बात करेंगे थोड़ी सी. और रिसोर्स लेवलिंग जब हम टास्क के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारी क्या प्रायोरिटी है. और रिसोर्स लेवलिंग अगर हम बात करें कि रिजॉल्विंग ओवर एलोकेशंस, सो द फाइनल सेक्शन of the dialog box deals with the guts of the way project resolves the over allocations that the other settings in the dialog box tell it to look at. The first control in this section is important because it picks the leveling order that project will use. The 3 choices are ID only, standard and priority. Standard. So ID only. Using ID only, project will delay tasks with higher task ID values first before looking at lower IDs. This basically means that tasks listed at the top of the page automatically have a higher priority in the leveling algorithm than tasks at the bottom of the page. I cannot think of a situation where I would use this method over one of the other 2 methods mentioned, and I've never used this method for production project and construction project. I have always preferred to use the other methods that use more criteria than just the ID, and that is standard.
So using the standard method, project examines the following criteria in the order they are listed to determine how to act on over allocated tasks and which to delay first. So predecessor relationships, slack, the number of time units that a task can be delayed without changing the finish date of the project, dates, priorities and constraints. So project will honor predecessor relationships first, so that the leveling solution will not have tasks violating their relationships. Then among tasks that have similar relationships, those tasks with higher slack will be moved before those with lower slack values. Then task dates, priorities and constraints will be taken into account in that order, and this method is the default and is the one that is most commonly chosen for the leveling. And then the third one is priority and standard. So this method takes the same criteria into account as the standard method, except that it looks at priority first. Using this method, the task priority is the primary driver factor to determine how project will delay your tasks. So जो हम task information dialog box के अंदर देखते थे कि हमारा एक priority है जो कि 500 लिखी है, अगर हम उसको सेट कर दें तो ये बेसिकली हमारी रिसोर्स लेवलिंग में काम आ जाती है. So with this method, tasks with lower priorities are leveled first and tasks with the same priority will be delayed based on the other criteria. This method gives you control over how project will make its leveling decisions. For example, if you have a task you don't want to touch by leveling, you can give it a priority of 1000, which means don't level. With 1000 priority choices, you have very granular control over the process. And then we have this screen, and दूसरी जो चीज़ है उसमें है कि आपने level only within available slack. So the level only within available slack option looks at the slack value of the task and delays tasks only within that amount of slack. For example, if a task is 5 days long and has 15 days of slack, leveling with this option turn on this delay will this task only 10 days, even if this means leaving some other over allocations unresolved. This option is unchecked by default. We need to check it. और जो दूसरी एक ऑप्शन है वो है लेवलिंग कैन एडजस्ट इंडिविजुअल असाइनमेंट्स ऑन अ टास्क. इसको हमने सेलेक्ट किया था. सो द लेवलिंग कैन एडजस्ट इंडिविजुअल असाइनमेंट्स ऑन अ टास्क option gives project the ability to move assignments on a task without having to delay the assignments of other resources working on the task. This option lets project move only the over allocated resource instead of having to delay the entire task. So figure B, which we have seen, shows the two tasks. Task 2 is assigned to both Steve and Frank, but Steve works only the first 4 days. Steve is assigned to task 1 also, but it conflicts with the 8-hour is assigned to task 2. So this is figure B, and this is how we have this example. So over there Steve is for 8 hours, and task 2, Steve and Frank, they are having 16 hours together. If this project were leveled with the leveling can adjust individual assignments on a task option turned off, task 2 would be moved to start on Tuesday. इधर आ जाएगा. But if you turn on this option, project will delay Steve's assignment on task 2 by 1 day. So that he can work task 1 on Monday and then start his work on task 2 on Tuesday. Frank is then allowed to work on Monday. In this case, this option saves an entire day over leveling without the option. So leveling can create splits in remaining work. So with the leveling can create splits in remaining work option turned on, project can delay the remaining portions of task in progress just as it would normally do with entire tasks that haven't started yet. If you turn off this option, in progress task cannot be adjusted with leveling delay. So this is all about leveling delays, and then we can have so leveling delays screening. We need to keep resource management clicked when we. So let's see if we have this thing or we don't have this thing. So view, and there are toolbars and resource management. So resource management, we can have now all the things available.
resource allocation view, task entry view, and so let's have, so this is resource allocation view, and then task entry view, and new resource forms, and share resources, update resources pool, and we can level, so we can have different things available. What I'm doing is मैं सारे को undo कर रहा हूँ जहाँ तक के, और इसको मैं undo करके 180 डेज पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और व्यू में जा करके मैं रिसोर्स शीट के अंदर ये जो मेरा रिसोर्स है इसको मैनुअली मैं 300% कर रहा हूँ और फिर सेव कर रहा हूँ. मेरा रिजॉल्व जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है, और अब हम लेवलिंग डिलेज जो है वो हम इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं. और अब हम बात करेंगे बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज बेसलाइन. बेसलाइन बेसिकली जब आप एक पूरा मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो उस वक्त फिर आप एक बेसलाइन क्रिएट करते हैं. बेसलाइन बहुत सिंपल चीज़ है. बेसलाइन जब आप क्रिएट करते हैं तो बेसलाइन होती क्या है, वी विल सी. So the baseline is nothing else but the frozen picture of your project at a certain point in time. So it is just a click and picture is taken. तो जब आपका प्रोजेक्ट शुरू में था और अब आप यहाँ आ चुके हैं तो आपको पता चलेगा कि पहले और अब में क्या फ़र्क है. In Microsoft project you are able to have up to 11 different baselines, and you should only re-baseline when you have major changes in your project such as delays, overrun of budget, or loss of key resources. So now how we create this baseline in Microsoft Project 2007, you set the baseline by create the project that you would like to baseline. We have done that. Choose tools, tracking, and set baseline. So let's go into MS Project. So tools and tracking, and there is an option set baseline. But before that, I will advise you to save your work and have Gantt chart view available. So now tools, tracking, and set baseline. You click it. When you click it, you will have this thing. So baseline, entire project, and what you need to do is you need to click OK, but then open the baseline list box and choose the number of your baseline, verify by clicking OK. So let's see. OK, so baseline we have set OK and OK. What happened by clicking this? What happens when we click the camera? Click and picture has been saved somewhere. So this has happened, and now we will build a few things on that baseline. So this is tracking, tools, tracking, and set baseline, and over there we can have OK. So set baseline, this is what we have already covered, and we clicked OK, and now we will be going into baseline view. So let's go there, and then we will be having tracking table, and we can have this thing. OK, and we can see the summary, and we can have the cost. So baseline cost has been set over there. So total cost is there, baseline cost is there, and actual cost is not there, remaining cost is there. So everything has been done that. We can have this thing, and now we need to track, and then we will be concluding towards tracking, and then we will have again a summary of the whole thing. So baseline has been set, and now we need to track. So now we will select tracking table, and then we will be doing something over there. We will fill the values over there and see what happens over there. Variances we will see, and then we will be talking on that. Okay, so Alt tab, and over there more tables, and see if we have something. Apply
and tracking, and over there like tools, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट की काफ़ी करंट डेट जो है वो आज की सेट की है, हम इसको चेंज करते हैं और इसको ले जाते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हम अक्टूबर में जो है वो जा चुके हैं और अक्टूबर की फर्स्ट हम सेट कर दी हमने। मैंने क्या किया, टूल्स में गया, टूल्स प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, and current date is set on 1st of October 2014. ओके अब हम चले गए हैं अक्टूबर में, तो अक्टूबर में हम क्या क्या काम कर चुके होंगे, तो हम परसेंट कंप्लीट में उसको देखते हैं कि सर्वे जो है हम अज्यूम करते हैं कि हमारा 100% कंप्लीट हो चुका होगा बाय दैट टाइम, और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी 100% कलेक्ट हो चुकी होगी और हमारी नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके, और पेमेंट्स भी 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो सिस्टम ये कह रहा है कि हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं और हमने प्रोसेस भी पोजेशन भी हमारे पास आ चुका है, डिज़ाइंस हमारे हो चुके हैं बाय दैट टाइम। और अगर हम देखेंगे अक्टूबर तक हम बेसिकली हमें ये काम जो है ब्रिक वर्क भी कंप्लीट कर जाना चाहिए था। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी हो चुका, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बाद हमारा लेआउट भी हो गया, और एक्सकवेशन जो है हमारी और इस ये भी 100% हो गया, एक्सकवेशन की भी सारी एक्टिविटीज़। और उसके बाद फाउंडेशंस जो हैं ये भी हमारी 100% हो गई। डीपीसी हमारा 100% हो गया, लेकिन ब्रिक वर्क जो है वो हमारा सिर्फ 25% हुआ, सिर्फ 25% हुआ। और अब हम थोड़ी सी कॉस्ट, बाकी हमारे सारे चीज़ें इसी तरह रहती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो कॉस्ट के पैरामीटर्स हैं उनकी बात करते हैं। ये तो हमारे सारे चीज़ें आ गई जो कि फिजिकल प्रोग्रेस है और सारा कुछ है। ओके, एक्चुअल ड्यूरेशन के अंदर हम बात कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन एक्चुअल लगी। सो वी कैन डू दैट, बट आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू डू दैट। ओके, यहां देखें, जो चीज तो आपकी पूरी हो रही है उसके अंदर एक ब्लैक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है ये एक्टिविटी आपकी पूरी हो गई है और ये एक्टिविटी भी आपकी पूरी हो गई है। हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हमसे मिस हो जाए, लाइक हम कहते हैं कि ये अभी हमारा जो है नहीं हुआ, और हम इसको देखते हैं कि क्या फर्क पड़ सकता है कि अगर हम डीपीसी जो हमारा एक माइलस्टोन था और इसको हम कहते हैं कि ये अभी 5% हुआ है और ये 0% हुआ है, फिर क्या होगा। और फिर देखते हैं कि हमारा या इसको 0% अभी हुआ है, और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसको अभी हम 25% या 25% ब्रिक वर्क, तो ये हमारी चीजें जो हो चुकी हैं। अब हम कॉस्ट के टेबल में जाएंगे। कॉस्ट का टेबल, ट्रैकिंग हो गया, कॉस्ट का टेबल, और कॉस्ट के टेबल में हम टोटल कॉस्ट, एक बेसलाइन कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमारी यहाँ खुद ही कैलकुलेट होके आ गई है, राइट। तो रिमेनिंग कॉस्ट हमारी जो है वो निकल रही है, खुद ही कैलकुलेट हो रही है। लेकिन अगर मैं किसी जगह समझता हूँ कि कॉस्ट कुछ ज्यादा लगी थी, जिस तरह सर्वे का था, सर्वे मेरा था कि वो 6,52,000 में होगा लेकिन वो 7 लाख में हुआ, तो मैं यहाँ एक्चुअल कॉस्ट भी डाल सकता हूँ। उसके बाद मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो ठीक है, हमारे जो पोजीशन था वो और जो नेगोशिएशन थे वो 2,88,000 के बजाय वो 2 लाख में हुए। टीम ने उधर से सेविंग की। जो हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन है वो 3,50,000 में हुआ, और जो हमारी ड्राइंग्स थी वो 1 लाख रुपए में बनी, और जो हमारी अरेंजमेंट था वो हमारा 4,000 में हुआ, और जो एक्सकवेशन थी वो 2 लाख रुपए में हुई,
और जो लीन कंक्रीट है वो 1 लाख रुपए में होना चाहिए था, लेकिन वो 1,15,000 में हुआ। और जो डैम प्रूफिंग है वो हमारी 5,000 में हुई। डीपीसी जो कि 20,000 में होनी चाहिए थी वो 85,000 में हुई। और जो ब्रिक वर्क था वो जो कि 3 लाख में होना चाहिए था वो हमारा 3,367 जो है वो अभी तक का खर्चा आ चुका है। सो अभी हम इसलिए नहीं कर सकते कि अभी ये पूरा नहीं है तो इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी हम सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो अब जो रिमेनिंग कॉस्ट आ रही है वो, और जो वेरिएंस आ रहा है हमारा, ये हमारे पास कि कितना वेरिएंस हम बेसिकली कर रहे हैं। पहले जो वेरिएंस 0 था, लेकिन अब हमारा 3 मिलियन का जो है वो वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो उसके बाद हम समरी में देखते हैं। समरी के अंदर हमारे पास वर्क और परसेंट कंप्लीट और ये सारी चीजें हैं, कॉस्ट, इनकी सारी चीजें हमें पता हैं। उसके बाद हम यूसेज के अंदर अगर हम देखें, उसके बाद हम वेरिएंस के अंदर देखते हैं। और वेरिएंस हमने बात कर ली थी ऑलरेडी कि कितना वेरिएंस आ रहा है, और इसमें भी हम एक्चुअल जो है वो दे सकते हैं कि हमारी एक्चुअल डेट्स क्या थी। और उसके बाद हम वर्क देख लेते हैं कि वर्क हमारा जो है वो 100% कंप्लीट है, और इसी तरह हमारा जो डिफरेंट वेरिएंस हैं वो भी हम दे सकते हैं इसमें कि एक्चुअल आवर्स कितने हमारे आए हैं। लाइक अगर हम इसको इस सर्वे को हमारे जो आवर्स लगे हैं वो हम कर देते हैं 140 डेज, तो फिर हम देखते हैं कि टोटल क्या फ़र्क आता है। और अगर हम नेगोशिएशन को देखें तो इसके अंदर हमारे 40 आवर्स लगे हैं, और अगर हम पोजेशन को देखें तो इस पे हमारे 25 आवर्स लगे हैं। तो इसी तरह हमारे डिफरेंट वेरिएंसेस जो हैं वो बेसिकली वो सारे के सारे हमारे निकल रहे हैं। एंड मोर टेबल्स एंड वी विल सी अर्नड वैल्यू टेबल। अर्नड वैल्यू के ऊपर अब आप देखें कि आपकी प्लान्ड वैल्यू सारी एंटर हो गई है, और अब आपकी अर्नड वैल्यू भी खुद से एंटर हो रही है, और एक्चुअल कॉस्ट भी आ गई है, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, और एस्टिमेटेड कंप्लीशन, बीएसी, वीएसी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने खुद की थी। तो इस तरह की चीजें अब आपके पास सारी की सारी जो है वो आ रही हैं, और अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपका 10 मिलियन का वेरिएंस आ रहा है। ऑब्वियसली दैट इज नॉट प्रैक्टिकल वेरिएंस, बट स्टिल वी कैन हैव वैल्यूज। तो अब हमने क्या करना है कि ये डिफरेंट टेबल्स के साथ हमने प्ले कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे WBS Pro का क्या हाल है। तो वी विल क्लिक गो टू WBS Pro चार्ट, एंड ओवर देयर वी कैन हैव कि कितनी हमारी कॉस्ट है और कितने हमारे आवर्स हैं। और अब हम देखते हैं क्रिटिकल पाथ व्यू, और यहाँ देखें कि पूरा प्रोजेक्ट जो है हमारा अभी तक 24% कंप्लीट हो चुका है, और सिविल वर्क्स हमारे 23%, डिजाइन 100%, लैंड एक्विजिशन 98% कंप्लीट हुई है, और इलेक्ट्रिक वर्क्स हमारे 0%, प्लम्बिंग वर्क 0%। तो अब हमारी जो ब्लू हैं अब वो एक्टिविटीज सारी नॉन क्रिटिकल हो गई हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये क्रिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो रह गई हैं। सो इस तरह हम प्रोग्रेस व्यू देख सकते हैं। प्रोग्रेस व्यू के अंदर 24% हमारी प्रोग्रेस है टोटल, और बाकी जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, जिस तरह ये है पोजेशन, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट है। डीपीसी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, ये फर्दर कोई इस पर डिपेंडेंट नहीं था। तो इन दिस फैशन वी कैन हैव वेरी गुड लुक अगेन ऑन दैट। नाउ गो टू प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद जो चीज़ है वो आ जाता है रिपोर्ट्स का। सो रिपोर्ट में जाएं। रिपोर्ट में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, विजुअल रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स हैं। सो रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आपके पास काफी सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ। सो ओवरव्यू के अंदर आपकी प्रोजेक्ट समरी, और यहाँ आप देखेंगे कि स्टार्ट डेट क्या थी, बेसलाइन स्टार्ट डेट क्या थी, एक्चुअल स्टार्ट क्या है, एक्चुअल वेरिएंस, स्टार्ट वेरिएंस कितना है, ड्यूरेशन कितने दिनों का था, बेसलाइन कितना था, और वर्क शेड्यूल कितना था, बेसलाइन वर्क कितना था, और एक्चुअल का भी काफी सारा आ रहा है, और कॉस्ट का आ रहा है, कॉस्ट कितनी थी और कितनी रिमेनिंग है, और कितना वेरिएंस है। सो ये एक हमारी समरी, एक हमारी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद हमारा माइलस्टोन की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, क्लोज, और फिर हम कॉस्ट की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं। सो कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो हमारी ये देखिए कैश फ्लोज हमें दिए हुए हैं, और हम इसको डिफरेंट जो हमारे कैश फ्लोज हैं, और हम समरी के ऊपर अगर चले जाएं तो हमारे पास समरी भी आ सकती है कि फिनिशेस के ऊपर इतनी समरी है। और अगर हम बिल्कुल डाउन पे चले जाएं तो हमें
14-12 तक की जो समरी है, फिर 21-12 तक, हर वीक की जो है वो हमारे पास समरी यहाँ अवेलेबल है कि हर वीक में हमें कितने पैसे जो हैं वो चाहिए हैं उसकी पूरी। सो बेसिकली कैश फ्लो एनालिसिस बड़ा अच्छा ये करके इसने दिया हुआ है। उसके बाद हम अर्नड वैल्यू का टेबल देखना चाहते हैं। अर्नड वैल्यू के इंडिसेस भी कैलकुलेट हैं। प्लान्ड वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमारे पास अर्नड वैल्यू भी गिवन है जो कि अर्नड वैल्यू की आ रही हैं, और उसके ऊपर हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है। शेड्यूल वेरिएंस इस वक्त दिख रहा है और कॉस्ट वेरिएंस हमारा कितना है। हमारा एस्टिमेटेड कंप्लीशन 10 मिलियन तक चला जाएगा और हमारा जो बजट एट कंप्लीशन था वो 7 था, और इस तरह हमारा वेरिएंस एट कंप्लीशन जो है वो 3 मिलियन तक का हमें शो हो रहा है। सो इस तरह हम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो दूसरी भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ MS प्रोजेक्ट हेल्प्स अस कि हमें सारे एनालिसिस और सारी चीज़ें खुद करके वो दे रहा है। अब हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। सो ट्रैकिंग की हमने बात कर ली, वेरिएंस का देख लिया, एंट्री टेबल देख लिया, कहाँ एंट्री करनी है, रिपोर्ट्स देख ली, रिपोर्ट्स के अंदर हमने डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स देख ली, और सो हम डिफरेंट फर्दर जो है इसके अंदर हम कॉलम ऐड करना सीख चुके हैं। हम कस्टमाइज कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और उनके फील्ड्स भी बना सकते हैं। आई एडवाइज यू टू वर्क ऑन दैट। रिसोर्स पूल कैसे क्रिएट करना है, रिसोर्स शेयरिंग कैसे करनी है, इंटीग्रेटेड इसके ऊपर यू विल वर्क ऑन दैट and you read the slides over there and you need to develop a task list over there. So in this particular lecture हमने जो डिस्कशन की वो ज़्यादातर था कि हमने जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो हमारे ओवर एलोकेशन थी, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, हमने बेसलाइन कैसे क्रिएट करनी है, और हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रिंट कैसे करना है, क्या ऑप्शंस हैं, और फिर हमने डिफरेंट जो रिपोर्ट्स देखी वो देखी। लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग के ऊपर हमने बात की थी। रिसोर्स लेवल जब भी हम बेसलाइन करने लगते हैं तो उससे पहले हम रिसोर्स को बेसलाइन करते हैं, और फिर हमने ये भी बात की कि हर असाइनमेंट के बाद प्रोजेक्ट को सेव करना है। आप अपने MS प्रोजेक्ट और WBS दोनों फाइल्स को सेव कर लीजिए। और उसके बाद लेवलिंग के मुख्तलिफ तरीके थे, मिनट बाय मिनट की बात की, आर बाय आर की बात हुई थी, और फिर हमारा जो डे बाय डे है उसके ऊपर हमने बात की थी, और फिर हमने लेवलिंग की बात की थी कि लेवल दो तरीकों से हो सकता है। एक तो यह है कि आपने डेज ड्यूरेशन फिक्स कर दी कि 180 डेज है, अब आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते। अगर आप उसको सिस्टम को खुद लेवल करने देंगे तो वो क्या करेगा कि वो कुछ स्प्लिट्स कर लेगा, आप प्रायोरिटीज के बेस पे कर लेगा, ID के ऊपर बेस कर लेगा या स्टैंडर्ड के ऊपर बेस कर लेगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि कुछ इस तरह हो, आप रिसोर्स ऐड करना चाहते हैं। उस सूरत हाल में आप खुद से रिसोर्सेज डाल दें बजाय कि सिस्टम खुद से फैसला करे कि उसने क्या करना। जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप का अख्तियार होता है, फिर आपके काबू में चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास इस तरह की ऑप्शन नहीं है, आप बहुत ही कम्प्लेक्स शेड्यूल के साथ कर रहे हैं, वहाँ टाइम का क्वेश्चन है, तो आप सेव कर लें एक दफ़ा और फिर एक दफ़ा लेवल करें, और लेवल करके देखिए कितना टाइम का फ़र्क आता है कि आपकी वो टॉलरेबल लिमिट्स के अंदर आता है। अगर तो टॉलरेबल लिमिट्स के अंदर आता है तो फिर आप उसको ओके कर लें, अगर नहीं आता तो फिर आप मैनुअली उसको रिसोर्स लेवलिंग कर लें। सो ये हमने सारी गुफ्तगू की थी। उसके बाद हमने जब बेसलाइन की बात की तो बेसलाइन के अंदर कैसे बेसलाइन सेट करनी है, और 11 बेसलाइन आप सेट कर सकते हैं। जब एक बेसलाइन सेट हो गई तो फिर आपने ट्रैकिंग में जाके बेसलाइन सेट करने के बाद ट्रैकिंग टेबल में जा करके आपने एक्चुअल वैल्यूज़ वहाँ डाली थी, कॉस्ट की एक्चुअल वैल्यूज़ डाली थी, टाइम की एक्चुअल वैल्यूज़ डाली थी, और जब आपने ये सारी वैल्यूज़ डाल दी थी तो फिर आपने अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के कुछ इंडिसेस देखे थे, वेरिएंस के इंडिसेस देखे थे कि क्या वेरिएंस के इंडिसेस हैं जिनको आपने कवर करना है, और उसके बाद फिर आपने प्रिंटिंग की बात की थी, किस तरह आपने पेज सेटअप करना है, किस तरह आपने सेलेक्ट करना है, पेज का सेटिंग किस तरह करनी है। और जब हमने बात की थी कि अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो जो गैंट चार्ट है जिस कॉलम के ऊपर होगा वो कॉलम वो उसमें कवर नहीं होगा,
जो थोड़ा सा कॉलम आप चाहते हैं कि उसके थोड़ा सा राइट पे रख के करें तो वो कॉलम भी ऐड हो जाएगा। जिस तरह कि हमने इनिशियली देखा था कि जो प्रिंट प्रीव्यू आया था वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम का और साथ में गैंट चार्ट था, लेकिन फिर हमने ड्यूरेशन भी ऐड करना चाह रहे थे तो फिर हमने थोड़ा सा उसको ड्यूरेशन से हटा करके जो स्टार्ट डेट है उसके ऊपर किया था और इवेंचुअली फिर हमने इसके ऊपर कंटिन्यू किया था। फिर प्रिंटिंग हमने बात कर ली इसके ऊपर। फिर रिपोर्ट्स की हमने बात की कि रिपोर्ट्स हम डिफरेंट तरह की जनरेट कर सकते हैं, अर्न वैल्यू की जनरेट कर सकते हैं और हमने बेसिक रिपोर्ट्स की। कुछ रिपोर्ट्स अभी हम और देखेंगे, एक दो फाइनल चीजें करके तो फिर हम जो ओवर कोर्स क्या है उसको रिवाइज करेंगे कुछ थोड़े अरसे के लिए। पहले तो आप इसको सेव कर लें और एंट्री टेबल और उसके बाद आप रिपोर्ट में जो है हमारे पास विजुअल रिपोर्ट्स की भी ऑप्शन है कि हम विजुअल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं और काफ़ी सारी हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो बजट वर्क रिपोर्ट, कैश फ्लो रिपोर्ट, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अर्न्ड वैल्यू ओवर टाइम, तो इसको हम व्यू करके देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और इसलिए हम इन रिपोर्ट्स को नहीं करते हैं। बट अगर हमारी अर्न्ड वैल्यू की रिपोर्ट हो तो ये है हमारी एक अर्न्ड वैल्यू है और एक हमारी प्लान्ड वैल्यू है और एक हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। तो इस वक्त हमारी अर्न्ड वैल्यू नीचे है और हमारी प्लान्ड वैल्यू ऊपर है और एक्चुअल कॉस्ट अर्न्ड वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये एक हमारी बेसिकली शेप जो है वो आ रही है और डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की कि किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या सूरत हाल है और इवेंचुअली इट विल ड्रॉप जब हम क्वाड्रेंट नंबर 5 में जाएंगे। ये एक हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट है जिसको हम देख सकते हैं और ये एक्सेल में बनती है। वी कैन ओके। इसी तरह हम विजियो में भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं और इसी तरह हम रिपोर्ट्स के अंदर जा करके असाइनमेंट की रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं। हु डज व्हाट, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर क्या कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है, कब से कब कर रहा है। ये बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट है जिसको हम देख सकते हैं और एक्सकवेटर मशीन और सारे रिसोर्सेज का कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद असाइनमेंट की एक रिपोर्ट होती है कि हु डज व्हाट एंड व्हेन। ये बड़ा अच्छा एक है कि इस पे आपके आ जाता है कि कितने आवर्स उसने काम करना है और किस एक्टिविटी के ऊपर कितने आवर काम करना है। तो ये रिपोर्ट एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। हर एक रिसोर्स पर्सन की जो है वो आपको एक बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाता है कि वो कब और क्या काम कर रहा है। वर्कलोड की रिपोर्ट्स आप कर सकते हैं। रिसोर्स यूजेज की रिपोर्ट आ सकती है कि आपने कौन सा रिसोर्स कितना काम कर रहा है और इसी तरह आपकी दूसरी रिपोर्ट्स आ सकती हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट एमएस प्रोजेक्ट और WBS जो है उसको भी मैं सेव करता हूं और इस वक्त मेरी प्रोग्रेस भी आ रही है। अब हम इस सेमिनार को फॉर्मली क्लोज करते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस सेमिनार जो कि हमारा इस पर्टिकुलर सेमिनार के ऊपर था एमएस प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमने बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट के 7 प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो किया। जो पहला प्रोसेस है वो प्लानिंग वाला है, बाकी जो जिनके ऊपर हमने काम किया पहले तो यह है कि कैसे करना है और बाकी हैं जिस तरह किए जाते हैं। जिस तरह डिफाइन एक्टिविटीज था तो WBS हमारा बना क्रिएट WBS जो कि स्कोप मैनेजमेंट का प्रोसेस है और फिर टाइम मैनेजमेंट के हमारे जो प्रोसेस हैं उसमें डिफाइन एक्टिविटीज। WBS को हमें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना सीखा था। उसके बाद हमने सीक्वेंस करना सीखा था, नेटवर्क डायग्राम्स का जिक्र हुआ था और फिर हमने रिसोर्स एस्टिमेट किए थे, रिसोर्स शीट बनाई थी और चौथे नंबर पे हमने ड्यूरेशन असाइन की। जब ड्यूरेशन असाइन करते हैं तो छठा स्टेप खुद ब खुद हो जाता है डेवलप शेड्यूल। जब वो डेवलप शेड्यूल हो गया तो फिर हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हमें एक बेसलाइन सेट करनी है कि क्या बेसलाइन है हमारी और उस बेसलाइन के ऊपर नीचे हम कितना जा रहे हैं। तो वो बेसलाइन सेट कर दी और बेसलाइन सेट करने के बाद फिर हमने उसके अंदर एक्चुअल डाटा डाला और एक्चुअल डाटा डाल करके हमने उसको मॉनिटर किया कि हमारी क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए थी और हम कितना वेरिएंस हमें आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली एमएस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग थी। इसके साथ हमने WBS प्रो सॉफ्टवेयर सीखा जो कि इसके साथ काम करता है और दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग।
अब हम बात करते हैं पूरे कोर्स की। जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स हम देखते हैं कि हम पूरे कोर्स के अंदर क्या डिस्कशन जो है वो की और कैसे उसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो आपका बिजनेस एनालिसिस वाला पार्ट है वो उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, बेशक हमने उसके ऊपर एक लेक्चर किया था उस सेमिनार के ऊपर, और पीएमओ उसके ऊपर भी एक किया था, लेकिन वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम मैनेजमेंट है और जो हमारा नेटवर्क डायग्राम है, ये हमारा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बिजनेस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पीएमओ एंड अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट और हमारा नेटवर्क डायग्राम। हम इस पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस तो प्रोग्राम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा है, वो तो बिजनेस एनालिसिस जस्ट उसको हेल्प करता है, बट हम इस पर्टिकुलर कोर्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और फिर हमारा जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स का ये है कि ये आपने एक दफ़ा सारी हैंड्स ऑन आपका होना चाहिए है, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट हमने अडॉप्ट किया था, और उस कंसेप्ट के साथ आपको लेकर के चलना चाहिए है। This is all about this course and this seminar. I hope we had a very good time together. हमने इससे पहले भी एक कोर्स किया था और उसमें भी हमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हमने की थी। मेरी कोशिश थी कि हम कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जिनका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता वो लेकर के आएँ, और ताकि हमारी जो लर्निंग है, जो हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो डेप्थ भी हो लेकिन उसमें विड्थ भी हो। लाइफ के अंदर एक जो चीज़ है कि नॉलेज की जो कन्फ्यूशियस ने कहा था, द ट्रू सेंस ऑफ नॉलेज इज to apply it. So at this note, I conclude this course and I say good luck in your life. Stay blessed and Allah Hafiz.